अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला के बरकत नाम से शुरू करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का 17th लेक्चर। In this lecture we will continue our discussion on leadership that we started in our last lecture. There was one simple question: what is leadership? And then there are three group of people who answered the question. We categorized the theories of leadership into three categories. The first one was trait theories, then comes behavioral theories, and in our today's lecture we will see contingency theories. So here is a very basic philosophy. Leadership is a process, not a position, right? It is an ongoing process. There is a leader, and then there is a situation, and then there are followers. And in between of all those circles, there is the leadership, and it is a process, not a position. So there was one simple question: what makes a good leader? And we have various theories which we categorize. The first one is trait theories, then comes behavioral theories, and finally today we are going to see what are contingency theories of leadership. So trait theories. Trait theories क्या है? Trait theories look for the major characteristic common to all effective leaders. तमाम कामयाब लोगों के दरमियान कौन सी चीजें कॉमन थी? नंबर वन। नंबर टू, ट्रेड थ्योरीज के फॉलोअर्स इस चीज पर बिलीव करते हैं कि लीडर्स आर बॉर्न, लीडर कैन नॉट बी मेड। Then comes behavioral theories. Behavioral theories examine the actual behavior of effective leaders to determine what kinds of behavior lead to success. किस खास तरह का एक ओवरऑल बिहेवियर जो है लोगों को कामयाबी की तरफ लेके जाता है। बिहेवियरल थ्योरिस्ट का मानना है कि लोगों को हम स्पेसिफिक बिहेवियर अपना लेने के बाद लीडर्स बना सकते हैं। लीडर्स आर नॉट बॉर्न, दे आर मेड। And today we are going to see the contingency theories. Leaders' effectiveness depends or is contingent upon the interaction of leader behavior and the situation. ये कोई हार्ड एंड फास्ट चीज नहीं है, ये डिपेंड करता है लीडर और सिचुएशन की जो इंटरेक्शन है उस पर। हो सकता है एक लीडर एक जगह पे कामयाब हो, दूसरी जगह पे वो जाके नाकाम हो जाए। Contingency theories. The contingency theory of leadership states that a leader's effectiveness is based on how his or her leadership styles matches to the situation. Right? हर शख्स का एक स्पेसिफिक लीडरशिप स्टाइल है, और अगर उसका लीडरशिप स्टाइल किसी एक सिचुएशन में बहुत ज्यादा कामयाब है तो जरूरी नहीं कि दूसरी जगह पे जाके भी वो उतना ही कामयाब हो, मे भी दूसरी जगह पे जाके उसका लीडरशिप स्टाइल नाकाम हो जाए। थिंक अबाउट अ सपोर्टिव टाइप ऑफ लीडर। ही हैज ग्रेट कंसर्न फॉर पीपल, वो लोगों का बहुत ज्यादा ख्याल रखने वाला है, लेकिन अचानक से कोई क्राइसिस आ गए हैं, कोई स्पेसिफिक कोई इस तरह के कोई नेशनल लेवल का डिजास्टर है जिसमें हमें स्ट्रिक्ट किस्म की लीडरशिप की जरूरत है। खुदा न खास्ता कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया है या कोई जंग आ गई है। अब उस सूरत में ये लीडर क्या सपोर्टिव टाइप के साथ कामयाब हो सकेगा? सिचुएशन चेंज हुई तो उसको लीडरशिप स्टाइल या तो चेंज करना पड़ेगा या फिर वो नाकाम हो जाएगा। That is, the leader must find out what kind of leadership style and situation he or she best fit in. कि लीडरशिप और उसकी जो ओवरऑल सिचुएशन है उसमें कौन सा स्टाइल बेहतर तौर पे काम कर सकता है। यह है कॉन्टिजेंसी थ्योरीज के मानने वालों का ख्याल। So, leadership defined: the process of influencing others to facilitate the attainment of organizationally relevant goals. ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करना है और उस मकसद के लिए हमने लोगों को इन्फ्लुएंस करना है, उनको मोटिवेट करना है। And then there are three important variables. जी जरा ज़हन पे जोर दें, कौन से वेरिएबल्स हैं? पीपल, राइट? सबसे पहले लोग होंगे तो लीडरशिप होगी ना, वो लोग जिनको लीड किया जाना है। Then comes task, वो काम, what people are performing, लोग कौन सा काम परफॉर्म कर रहे हैं। Then comes environment, which the people and task exist. So there are three important variables of leadership: people, task and environment.
G. What is charismatic leadership? Charismatic leader. Defining charismatic leadership. कैसे होते हैं charismatic leaders? Charismatic leaders have a combination of charm and personal magnetism that contribute to a remarkable ability to get other people to endorse to their vision and promote it passionately. इनके पास इस तरह का एक पर्सनल चार्म होता है, इनकी शख्सियत में एक ऐसा कशिश या करिश्माती चीज होती है कि लोग इनके विजन को फॉलो करते हैं, इनकी खातिर लोग जान देने को तैयार होते हैं. दे आर charismatic लीडर्स. उनका विजन इतना स्ट्रांग होता है कि लोग उनके विजन के साथ खुद को अलाइन करते हैं, इनके ठीक को ठीक मानते हैं, इनके गलत को गलत मानते हैं. तो ये कैसे लीडर्स होते हैं, इनके पास क्या ऐसी खास चीज होती है? फर्स्ट, दे हैव अ लॉट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस. उनको अपनी जात पे बहुत ज्यादा एतमाद होता है. एक आम शख्स की निस्बत उनको अपनी जात पे बहुत ज्यादा एतमाद होता है कि इन मसाइल जो आज के दिन के मसाइल हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन के, मेरे मुल्क के, मेरे लोगों के, उनका सबसे बेहतरीन हल मेरे पास है. वो अपना उस सोल्यूशन लोगों के सामने पेश करता है और लोग उसके साथ जुदोजहद करते हैं. विजन. उनके पास इतना स्ट्रांग और क्लियर विजन होता है कि वो लोगों को बता सकते हैं, लोगों को कन्विंस कर सकते हैं और फिर लोग उनको फॉलो करते हैं. स्ट्रांग कन्विक्शन इन दैट विजन. उनको अपने विजन पे बहुत ज्यादा पक्का यकीन होता है. आउट ऑफ द ऑर्डिनरी बिहेवियर. उनका बिहेवियर भी आम लोगों जैसा नहीं होता. They have special type of behavior. The image of a change agent. लोग उनको चेंज एजेंट के तौर पे लेते हैं कि जनाब हालात खराब थे, अब ये शख्स आ गया है, एवरीथिंग विल बी फाइन नाउ. ओवरऑल लोग उनको एक आम शख्स के तौर पे नहीं लेते. उनका अपना उन्होंने जो इमेज प्रमोट किया होता है वो एक चेंज एजेंट के तौर पे होता है. So there are two types of charismatic leaders. किस तरह के charismatic leaders हो सकते हैं? Visionary charismatic leader. Vision. Through communication ability, the visionary charismatic leaders link followers' needs and goals to job or organizational goals. उनकी इतनी इनके पास स्पेशल विजन होता है और इनके पास कम्युनिकेशन एबिलिटी होती है. इन दोनों के जरिए ये लोगों के गोल्स को ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स के साथ लिंक करते हैं. सिंपल एक एग्जांपल देता हूं. एक शख्स का गोल है कि मुझे अगले 5 सालों में मेरे पास किराए का जो घर है मैं उसके बजाय मैं अपना जाती घर खरीदना चाहता हूं. ये मेरा एक गोल है, राइट? अब इस शख्स के ये उसका पर्सनल गोल है, इसके साथ ऑर्गेनाइजेशन का कोई लेना देना नहीं है. ऑर्गेनाइजेशन को तो काम चाहिए. अब ऑर्गेनाइजेशन के भी कुछ गोल्स हैं. तो करिश्मेटिक लीडर अपनी कम्युनिकेशन एबिलिटी के जरिए इस शख्स को ये यकीन दिलाएगा कि अगर आप ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने में कंट्रीब्यूट करते हैं तो उसके बदले ऑर्गेनाइजेशन आपको आपके गोल अचीव करने में कंट्रीब्यूट करेगी. तो इस तरह दोनों के गोल्स को लिंक कर दिया गया. एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने के लिए मेहनत करेगा और उसके बदले ऑर्गेनाइजेशन उसके गोल्स को पूरा करने के लिए कोशिश करेगी. दिस इज विजनरी charismatic leaders. And then come crisis based charismatic leaders. कोई ऐसा अचानक से नेचुरल डिजास्टर आ गया है, ऑर्गेनाइजेशन में कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई है, अचानक से शेयर्स की वैल्यूज बहुत डाउन हो रही हैं, या कोविड-19 का एक थ्रेट आ गया है हमारे सामने, ऑर्गेनाइजेशंस क्लोज डाउन की तरफ जा रही हैं, तो ये एक क्राइसिस है. तो इन हालात में क्राइसिस बेस्ड charismatic लीडर्स सामने आते हैं. द क्राइसिस प्रोड्यूस charismatic leaders communicate clearly what actions need to be taken and what their consequences will be. तो क्राइसिस में हमारे सामने लीडर्स लेके आते हैं. वो हमें बताते हैं कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, उस प्रॉब्लम का मेरे पास सोल्यूशन क्या है. charismatic leaders emphasize symbolic leader behavior. ये एक लीडरशिप के वास्ट किस्म का जो एक बिहेवियर होता है उसको सिंबलाइज करते हैं. visionary and inspirational messages. They have visionary and inspirational messages, right? non-verbal communication. ये अपनी कम्युनिकेशन के जरिए अपना विजन लोगों को कम्युनिकेट करते हैं और लोग इनसे इन्फ्लुएंस होते हैं. They have core values. इनके पास ओवरऑल लोगों से बेहतर वैल्यूज होती हैं जिनके जरिए ये लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं. And they have the ability to intellectually stimulate their followers.
वो अपने फॉलोअर्स को उनको इंटेलेक्चुअल लेवल पे जाके स्टिमुलेट करते हैं, जिसके जरिए इनके फॉलोअर्स इनको फॉलो करना पसंद करते हैं और इनके विजन को अपने साथ अलाइन करते हैं. Then they have confidence, of course, self-confidence. Here we are going to discuss another type of leadership, that is transformational versus transactional leaders. So let's discuss it simply. In a simple term, what does it mean to transform something? Transform करना किसे कहते हैं? किसी एक चीज को किसी दूसरी चीज में कन्वर्ट कर देना, उसको ग्रेजुअली चेंज कर देना. तो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स कौन होते हैं? लीडिंग changing the organization to fit the environment. Think about an organization that is severely hit by COVID-19. कोरोना वायरस के थ्रेट की वजह से बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन सीवियरली हिट हुई हैं. होटलिंग इंडस्ट्री है, टूरिज्म इंडस्ट्री है, एयरलाइंस है. तो अब हालात चेंज हो गए हैं. तो उनको एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर चाहिए जो चीजों को ग्रेजुअली बदलते हुए हालात के मुताबिक ट्रांसफॉर्म करे. They develop, they communicate and finally they enact a vision. उनके पास बदलते हुए हालात के मुताबिक ऑर्गेनाइजेशन को चेंज करने का एक विजन होता है. And then comes transactional leaders. Again going to the basics. What does it mean by a transaction? Transaction mean, thinking simply, transaction हम किसे कहते हैं? लेन देन को, give and take को. तो ट्रांजैक्शनल लीडर्स कौन होते हैं? मैनेजिंग, लिंकिंग जॉब परफॉर्मेंस टू रिवॉर्ड्स. दे हैव समथिंग टू ऑफर, आइदर इन फॉर्म ऑफ रिवॉर्ड और इन फॉर्म ऑफ पनिशमेंट. एंश्योर एम्प्लॉयज हैव नेसेसरी रिसोर्सेज, अप्लाइंग कॉन्टिजेंसी लीडरशिप थ्योरीज. तो बेसिकली ट्रांजैक्शनल लीडर्स ओवरऑल गिव एंड टेक पे बिलीव करते हैं कि अगर आपने लोगों से एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस लेनी है तो आप उनको इंसेंटिवाइज करें, आप उनको एक्स्ट्रा रिवॉर्ड्स के जरिए मोटिवेट करें, या उनको पनिशमेंट के जोर से आप उनसे ज्यादा काम ले सकते हैं. ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर कौन सी खास चीजें होती हैं? ही क्रिएट अ विजन. उसके पास एक स्पेशल किस्म का विजन होता है, बदलते हुए हालात के मुताबिक वो बताता है लोगों को कि आई कैन लीड, आई हैव द बेटर विजन. Then he communicates the vision. अगर उसके ज़हन में एक चीज है तो उसको बहुत क्लियरली लोगों को कम्युनिकेट कर सकता है. He must have very clear communication skills, verbal and non-verbal. Modeling the vision, वो उस विजन को ओवरऑल एम्पलीफाई करके लोगों को क्लियरली बता सकता है, उनको प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के जरिए समझा सकता है. And then finally he builds the commitment. लोग उसके साथ कमिटेड होते हैं. Here we have the screenshot of two transformational leaders. Muhammad Ali Jinnah from Pakistan and Martin Luther King from America. So what are the traits of transformational leaders? They have high self-confidence, right? They articulate a vision. उनके पास एक ऐसा vision होता है, वो बताते हैं कि these are the crises and this is my vision to solve this problem. मोहम्मद अली जिन्ना थे, एक क्राइसिस था, यूनाइटेड हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स थे. उनके पास एक विजन था कि अगर हम इसको रिलीजन की बेस पे डिवाइड कर दें तो ये सारे प्रॉब्लम्स खत्म हो सकते हैं. मार्टिन लूथर किंग, ओवरऑल रेशल डिस्क्रिमिनेशन थी अमेरिका में, नस्ली इम्तियाज था. उसके मतलब इनके पास एक स्पेशल विजन था कि अगर हम बराबरी की बुनियाद पर लेजिस्लेशन करें, इक्वल लेजिस्लेशन करें, तो उसके जरिए हम अमेरिका के मसाइल को हल कर सकते हैं. तो बेसिकली दे हैव अ क्लियर विजन, दे आर्टिकुलेट अ विजन, assumes personal risk to pursue vision. अपने विजन को इनेक्ट करने के लिए, अपने विजन को कम्युनिकेट और उसको ओवरऑल इंप्लीमेंट करने के लिए वो अपनी जिंदगी को भी अपने दांव पे लगाने के लिए तैयार होते हैं. यूजेस अनकन्वेंशनल स्ट्रेटजीज. बाकी लीडर्स के मुकाबले में इनके पास कुछ स्पेशल किस्म की स्ट्रेटजीज होती हैं. परसीव सेल्फ एज अ चेंज एजेंट. ये खुद को एक चेंज एजेंट के तौर पे लोगों को पोर्ट्रे करते हैं. लोग इनको समझते हैं कि यस, अब ये शख्स आ गया तो अब जरूर हालात चेंज होंगे. दे आर टेकन एज चेंज एजेंट्स. अगेन summary of what we have discussed. Transactional leadership is all about old approach, reward and punishment. Transaction है ना, give and take है. You offer someone something and in favor
he gives you something. This is an old approach. It's based on reward or punishment. And transformational leadership that inspire. ये आप inspiration के जरिए लोगों से काम लेते हैं. Okay जी, as a transactional leader, I use formal rewards and punishment. Transaction है. Give me something that I need, and in return, I will offer you something that you are in need of. Right? But as a transformational leader, I inspire and excite followers to high levels of performance. ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर लोगों को इंस्पायर करता है, उनके अंदर एक एक्साइटमेंट देता है परफॉर्मेंस के एक नए लेवल्स के लिए. राइट? ओके जी, दिस इज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर. लेट्स स्टॉप इट हियर. आई होप यू एंजॉयड आवर लेक्चर. कमेंट्स में मुझे आपकी सजेशंस और क्वेश्चंस का इंतजार रहेगा. टेक केयर. अल्लाह हाफिज.